So today we are going to study about Bipin Chaudhary's lapse of memory. ठीक है. सो बाकी लास्ट तक तुम लोग मतलब दिए नहीं हो अपना होमवर्क्स एक्सेप्ट few people एक्सेप्ट स्वयंसिद्धा गोस्वामी एंड फ्यू अदर्स. बाकी सब दिए नहीं हो. तो तुम्हारा वोकेबलरी वाला टास्क भी हुआ नहीं है, ना ही कोई एक्सरसाइज वगैरह हुआ है. So don't play with yourselves. Right now you are in class 8, okay? Within 2 years you are going to be in class 10th. So if you didn't improve your vocabulary tremendously in a positive manner, then how are you supposed to write in your exams? So as I have prescribed you for writing 5 words every day along with its meaning and sentences to be framed out of those words. So these were the tasks for every day, but no one of you have shown it even as of now. And at the same time, you have not shown any exercise homework also. So just do it positively and show it. So today we are going to study about Bipin Chaudhary's lapse of memory. So tell me, do you think you have good memory? Say me, what about your memory? How do you think? Do you have memory after all? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So have you seen memory? कभी memory No, देखा? sir. Okay. No, sir. Why have not you seen memory? So we can feel the memory. We cannot see the memory. Okay. You have felt the memory as well. Tell me, how did you feel? Okay. Even if you have not felt it, you have just uh, associated the sense of it, isn't it? So how did Yes. it came to your mind? Basically, when uh, especially when you are thinking something. Let's say, for example, just a thought. Okay, you cannot think about something unless and until you have known about it, or you had certain ideas prior to it. Okay, like for example अभी हम स्कूल के बारे में हम Good morning, sir. कोई वर्ड्स भी बात करते हैं, जैसे कि मान लो मेमोरी. ठीक है, ये वर्ड मेमोरी को कहीं से कहीं ना सुना है, या नहीं भी सुने होते तो सीख रहे हो. ठीक है, तो वो भी मेमोरी होके एसोसिएट हो जाएगा. तो जो थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं उसी मेमोरी का रिसाइकल हो रहा है कि नहीं. ठीक है, what you are thinking is basically just a recycling of data or memory that you have inside your head, isn't it? So Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मान लो कभी कुछ चीज़ें भूले हो. हैव यू फील समटाइम्स as if you have forgotten something? Do you ever feel that as if you have forgotten something in your life? Yes, sir. Okay, Yes, sir. tell me Yes, an sir. instance when you have forgotten something. Do you remember yesterday when I was teaching you glimpses of past, and in that chapter I talked about uh, Britishers' past legislation or law through which they can arrest or they can detain any individual without trials in court, isn't it? Yes, sir. Yes, at that time I told you that I am not being able to recall something, isn't it? I am not being able to recall it. So it sometimes happen that uh, we may not be able to recall certain ideas, and later on we may find also that, oh, this was the ideas that we have forgotten, isn't it? But forgetting
is a part of life, isn't it? Let's say, for example, mind has a tendency to forget everything. मतलब जो एक तरफ से रिमाइंड करते चलो दिमाग को, एक तरफ से माइंड भूलते चलेगा, है ना? तो दिस फॉरगेटफुलनेस इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग वन वे यू कैन से. हाउ? अगर भूलते नहीं तो याद भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? एक एक अच्छा तरीका क्या है? हाँ सर. एक अच्छा तरीका बहुत ज़्यादा पढ़ पाने का यही होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ पाने का कि पढ़ लिए एक चीज़ को, ठीक है, डोंट बॉदर टू जस्ट टू रिमेंबर इट, फोर्सफुली रिमेंबर करने का कोशिश मत करो, बल्कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जिसको तुम्हें मेमोराइज करना पड़ेगा, बट फोर्सफुली मेमोराइज ना करके कुछ चीज़ें हैं जिसको समझ के बस खाली रिटर्न करके छोड़ दो, आगे दूसरा कुछ पिकअप कर लो. और उस पर क्या होगा, पढ़ते पढ़ते कुछ टाइम आगे पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए तुम्हें भूलना भी ज़रूरी है, ठीक है? तो पहले एक बार पढ़ लिए, फिर उसको भूल लिए, बाद में कभी रिवाइज करते रहोगे. तो कैसे होता है, बेसिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तुम्हारे दिमाग में मतलब 3 पार्ट्स होते हैं. एक होता है सबकॉन्शियस मेमोरी, सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है कॉन्शियस माइंड, और एक होता है ऑन कॉन्शियस माइंड. तो ऑन कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड मतलब जिसके बारे में तुम अवेयर हो. सब कॉन्शियस माइंड मतलब मान लो अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सब कॉन्शियसली जुड़ा हुआ है, इसी वजह से तुम क्या कर रहे हो, कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो सुन पा रहे हो. मान लो ये वर्ड, जैसे कि बोलना, ये वर्ड पहले से ही तुम सुने हुए हो, सबकॉन्शियस माइंड में इसके रिलेटेड मेमोरी जुड़ा हुआ है. इसी वजह से क्या होता है, जब बैक कोई चीज़ तुम याद करते हो, यानी कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, जैसे कि बोल रहा हूँ ये वर्ड को तुम कहाँ से पिकअप कर पा रहे हो, सबकॉन्शियस मेमोरी से. तो जैसे कि ये चीज़ को तुम एंगेज हुए होगे, ठीक है, अपने हिसाब से धीरे धीरे एंगेज होते रहोगे, पढ़ते रहोगे चीज़ को, और स्ट्रेस भी नहीं लोगे कभी कि मतलब खाली याद ही करना है बोल के, ठीक है? इफ़ यू डोंट स्ट्रेस बट इफ़ यू कीप स्टडिंग इट, देन वन डे व्हाट विल हैपन, बेसिकली योर सबकॉन्शियस माइंड विल रिवर्ट बैक, ओके, एंड जस्ट इन्फॉर्म यू एट द राइट टाइम. तो ज़रूर नहीं है कि हर टाइम ऐसे ही होगा, बट देर आर मैनी टाइम्स इट विल हेल्प यू. ओके, समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, sir. Yes sir. Sir. Yes, sir. Okay. So, in this story we are going to talk about Bipin Babu or Bipin Chaudhary. Okay. He almost goes nearly mad, okay, because he cannot recollect his stay at Ranchi. और रांची में अपना स्टे कैसे रहे थे उसके बारे में वो याद नहीं कर पाते. Sir, co-page ର ପଢଉଛନ୍ତି. Bipin Chaudhary's loss of memory. So हम देखेंगे इस स्टोरी में कैसा होता है, ठीक है? एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, Bipin Chaudhary would drop in at Kalicharan's in New Market to buy books, crime stories, court stories and thrillers. He had to buy at least 5 a time at last to see through the week. He lived alone, was not a good mixture, had few friends and didn't like spending time in idle chat. Today at Kalicharan's, Bipin Babu had the feelings that someone was observing him from close quarters. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking young man who now broke into smile. I don't suppose you recognize me? Have we met before? Asked Bipin Babu. The man looked greatly surprised. We met every day for a whole week. I arranged for a car to take you to Hundro Falls. In 1958 in Ranchi, my name is Parimal Ghosh. So, every Monday, हर कोई Monday में on his way back from work, अपना काम करके, अपना काम ख़त्म करके वो जब घर पे जाते थे, तो बिपिन चौधरी
would drop in at Kalicharan's in New Market to buy books. तो वो जब काम करके घर लौटते थे वो क्या करते थे, कालीचरण के शॉप में वहाँ पे न्यू मार्केट में रुकते थे, ठीक है, किताब खरीदने के लिए। क्राइम स्टोरीज मतलब जो क्रिमिनल लोगों का कुछ स्टोरीज वगैरह रहता है, घोस्ट स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज, और थ्रिलर्स। थ्रिलर्स मतलब सर हाँ सर କୋଉ ଚାପ୍ଟର ପଢଉଛନ୍ତି? ମୁଁ କାଲି କ୍ଲାସ୍ କରିନଥିଲି ତ ଜାଣି। बिपिन चौधरी स्लैब्स ऑफ मेमोरी स्टार्टिंग। यस सर। थ्रिलर्स, थ्रिलर्स मीन्स सस्पेंस स्टोरीज, ठीक है। सस्पेंस स्टोरीज कैसा होता है यस बेसिकली, सर। मतलब लास्ट में जब तुम्हें रिवील किया जाता है, पहले से ही बताया नहीं जाता कि मतलब हो क्या रहा है। He had to buy books. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. तो एक हफ्ते में कम से कम 5 बुक पढ़ लेते थे वो, तो ताकि एक हफ्ता पूरा बीत जाए इस वजह से वो क्या करते थे, 5 किताब एक साथ खरीद लेते थे। He lived alone was not a good mixture. तो एक सोलिटरी लाइफ, एक सोलिट्यूड वाला लाइफ, एक साइलेंस वाला लाइफ, एक आइसोलेटेड वाला लाइफ, जैसे बोलो, ठीक है, अकेले रहते थे मान यानी कि, और किसी के साथ मिलते जुलते नहीं थे। एट फ्यू फ्रेंड्स, बहुत कम दोस्त थे उनके। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चाट, और बकवास की मतलब आइडल मतलब मंडेन टॉक, आइडियल चाट मतलब मंडेन टॉक मतलब बेफालतू की बातें, इधर उधर खाली बग 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 करने रहना, इस टाइप का चीज़ें उनको पसंद नहीं आता था। टुडे एट कालीचरण's, तो कालीचरण के दुकान में, और वहीं पे जो बिपिन बाबू हैड द फीलिंग्स दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, तो कोई दूर से मतलब पास से उनको मतलब देख रहा है, ठीक है, उनको ऑब्जर्व कर रहा है। He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. तो पीछे घूमते हैं और देखते हैं कि एक जेंटल आदमी खड़ा है, वो जो उनको देखते ही हंसने लगता है। I don't suppose you recognize me. तो बोलते हैं कि मैं सपोज नहीं करता कि आप मुझे याद नहीं मतलब नहीं पहचानते। बोल रहे हैं यानी कि आप पहचानते होंगे मुझे। तो बिपिन बाबू बोलते हैं कि हैव वी मेट बिफोर, क्या हमने पहले से मिला है। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, तो थोड़ा अचंभित हो जाता है। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, हमने हर दिन एक वीक वर्क के लिए पूरा हर दिन हमने ऑलमोस्ट मिला खुद को। आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू हुंड्रो फॉल्स, मैंने एक कार भी अरेंज किया आपको हुंड्रो फॉल्स को लेने के लिए, ठीक है। इन 1958 इन रांची माई नेम इज़ परिमल घोष, 1958 के टाइम पे रांची में मेरा नाम परिमल घोष है। रांची, बिपिन बाबू बोल रहे हैं रांची में ना। बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक, तो बिपिन बाबू को ऐसा लगा कि वो नहीं बल्कि वो आदमी एक मिस्टेक कुछ कर रहा है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू कभी रांची नहीं गए थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, मतलब बहुत बार जाने के लिए सोच रहे थे लेकिन गए नहीं थे। बट नेवर मेड इट। स्माइल्ड एंड सेड डू यू नो हु आई एम, तो हंसने लगे और बोले क्या आपको पता है कि मैं कौन हूँ। द मैन रेज्ड हिज eyebrows, beat his tongue and said, do I know you? Who doesn't know बिपिन चौधरी। तो जो आदमी है वो अपना आँख उठाता है, ठीक है, अपना जीभ को काट लेता है, बोलता है डू आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। Who doesn't know बिपिन चौधरी, बिपिन चौधरी को किसको पता नहीं है। बिपिन बाबू now turned towards the bookshelf and said, still you are making a mistake, one often does, I have never been to रांची। तो अभी वो फिर घूम के बोल रहे हैं कि आप मिस्टेक अभी भी कर रहे हो, मैं
रांची को कभी गया नहीं हूँ। The man now laughed aloud. What are you saying, Mr. Chaudhary? You have fall in Hundro and call your right knee. तो हंसने लगा, वो बोलता है कि आप क्या बोल रहे हो मिस्टर चौधरी, आपने हुंड्रो में जो फॉल है, जो स्ट्रीम है, वहाँ पे गए थे और वहाँ पे अपना अपना राइट नी को इंजोर्ड कर लिए थे, कट हो गया था। आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैंने वहाँ पे आयोडीन मतलब लोशन वगैरह लाया था जो जिससे आपका घाव सूख जाए। ही हैड फिक्स्ड ऑफ अ कार फॉर यू टू गो टू नेतारहाट द नेक्स्ट डे बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। तो मैंने एक कार आपके लिए फिक्स किया था आप नेतारहाट पे जा पाओ, लेकिन आपके पैर में दर्द था इसलिए आपने मना कर दिया था। कैंट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आप कोई चीज़ बैक याद नहीं कर सकते? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट द टाइम, कोई दूसरा आपको पता है वो भी रांची में उस टाइम पे था। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, दिनेश मुखर्जी भी रांची पे उस टाइम थे। यू स्टेड इन अ बंगलो, आपने बंगलो में रहा। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड, आप बोले कि आप होटल फूड पसंद नहीं करते थे। वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय बावर्ची, तो आपने तो मिस्टर दिनेश मुखर्जी भी आपके साथ थे उस टाइम पे और आपने एक बंगलो में रहा और आपने बोला कि आपको होटल का फूड पसंद नहीं है, ठीक है। कोई मतलब बावर्ची प्रोबेबली कोई मतलब सर्वेंट, मेड सर्वेंट हो सकता है शायद। अगर वो फूड कुक करके दे तो उनको पसंद आएगा, ठीक है। सो मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, तो मिस्टर मुखर्जी अपने बहन के साथ रहते हैं। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, आपने मून लैंडिंग के बारे में भी बहुत बड़ा आर्गूमेंट किया था, याद करते हो? आई विल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरी द बैग विद बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, एम आई राइट और नॉट? सो मैं आपको और भी ज़्यादा बताऊंगा। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, तो आपने यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स, तो आपने एक बैग लिया उसमें बुक्स लेते हुए, ठीक है। इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, एम आई राइट और नॉट? मैं सही हूँ या नहीं हूँ? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आई स्टिल ऑन द बुक्स, तो बिपिन बाबू ने मतलब बात की, मतलब बहुत चुपचाप होके, ठीक है। अभी भी उनका आँख बुक्स किताबों में थे। Which month in 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, कौन सा मास के बारे में आप बात कर रहे हो 1958 में? द मैन सेड अक्टूबर, तो आदमी बोलता है अक्टूबर। बिपिन बाबू बोलते हैं नो सर, आई स्पेंड पूजा इन 58 विथ अ फ्रेंड इन कानपुर, यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, गुड डे। तो बिपिन बोलते हैं कि मैं तो 58 के टाइम पे, उस टाइम पे एक फ्रेंड के साथ मतलब पूजा में लगा हुआ था, ठीक है। आई वॉज डूइंग पूजा एट दैट टाइम। तो गुड बाय वही बोलते हैं वो, गुड डे, बट द मैन डिडंट गो नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, लेकिन जो आदमी था वो ना ही गया और ना ही वो बात करने लगा। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ बरंडा ऑफ योर बंगलो, तो आपके बंगलो का बरंडा में मैं आपके साथ टी पी रहा था। आई वॉज टेकिंग टी विथ यू इन बंगलो, यू स्पोक अबाउट योर फैमिली। क्या है? सिर्फ देखना है, क्या है देख देना है बस। ऑफिस A1 फॉर फैकल्टी, फोटो निकाल रुको रुको रुको, इसको मुझे हो सकता है कि कुछ काम पड़ जाए बाद में। थैंक यू।
ओके, सो फिर से आर्गूमेंट करने लग, फिर से बोलने लगता हुआ इंसान बोलता है कि आप बंगलो के बरंडा में, ठीक है, मैं चाय पी रहा था। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने आपके फैमिली के बारे में बात किया। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने बोला कि आपका कोई चिल्ड्रन नहीं है। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और आपने अपना मतलब वाइफ को 10 साल पहले खो दिया है। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, आपका ओनली जो भाई है वो मतलब ऐसे ही मतलब पागल होके मर गए थे। विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इसी वजह से आप मेंटल हॉस्पिटल रांची को विजिट नहीं करना चाहते थे। सो व्हेन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर बुक्स वाज लिविंग द शॉप, जिस टाइम पे बिपिन बाबू मतलब बुक्स के लिए पे कर चुके थे और शॉप को छोड़ के जाने वाले थे, द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ, तो ये आदमी अभी भी मतलब देख रहा है, सोच रहा है कि ये कैसे इंसान है, अभी भी याद नहीं आ रहा इनको। सो बिपिन बाबू's car was safely parked in Botram Street by Lighthouse Cinema, तो बिपिन बाबू का जो कार था वो बॉट्रैम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा वहाँ पे पार्क था। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू कार, तो जब वो कार में बैठे तो ड्राइवर को बोलते हैं जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम, तो वो बोलते हैं कि क्या आप गंगा के साइड में ही मतलब ट्रैवल कर सकते हो क्या। ड्राइविंग ऑफ द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू इंट्रूडर, तो जिस टाइम पे जा रहे थे वो सोचने लगे कि जो इंट्रूडर है यानी कि जो इंटरफेरेंस करता है, यानी कि जो आके बीच में टोक टोकावा किया, उसको इतना अटेंशन देने के लिए, इतना ध्यान देने के लिए उसके बातों के लिए वो रिग्रेट करते हैं, मतलब थोड़ा दुखी अनुभव करते हैं। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो कभी रांची गए ही नहीं थे। नो क्वेश्चन अबाउट इट, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता कि वो रांची कभी गए थे, ठीक है। इट वॉज इनकॉन्सीवेबल मतलब कॉन्सीवेबल मतलब कॉन्सीव करना मतलब इमेजिन करना। यहाँ पे देखो सॉफिक्स भी लगा है, प्रीफिक्स भी लगा है। प्रीफिक्स क्या लगा है, इन मतलब उल्टा हो गया, इमेजिन करना। यहाँ पे लास्ट पे फिर क्या लगा है, सॉफिक्स एक लगा है एबल, तो वो क्या हो जाता है, कॉन्सिव से जब एबल लगाए तो कॉन्सिव वर्ब था, एबल जब लगाए एडजेक्टिव हो गया कॉन्सिवेबल, तो इमेजिन जो किया जा सकता है उसको कॉन्सिवेबल बोलते हैं। बट इनकॉन्सिवेबल मतलब जिसको इमेजिन नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, जिसके बारे में कल्पना ही नहीं की जा सकती, तो वो बोल रहे हैं कि इसके तो कल्पना से बाहर है। दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट व्हिच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago, जो कुछ 6-7 साल पहले हुआ था, उस इवेंट के बारे में क्या हम इतना जल्दी इतना इजीली मैं फॉरगेट भूल सकता हूँ। ही हैड एन एक्सेलेंट मेमोरी, उनके पास बहुत अच्छा मेमोरी था। ऑनलेस बिपिन बाबू हैड रील्ड, तो उनका बिपिन बाबू का दिमाग कन्फ्यूजन में रहने लगा, वो कन्फ्यूज होने लगे, दिमाग घूमने लगा। रील मतलब घूमने लगा। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या वो अपने दिमाग को खो रहे हैं। बट हाउ कुड दैट बी, बट ऐसे कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, हर रोज वो ऑफिस में काम करते थे। इट वॉज अ बिग फॉर्म, बहुत बड़ा कंपनी था। ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, वो बहुत अच्छे मतलब रेस्पॉन्सिबल मतलब बहुत बड़ा पोस्ट में थे। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली लॉन्ग, वो कभी अवेयर ही नहीं थे कोई गलत होते हुए। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग एंड येट, और आज भी वो आधा घंटा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बात की है और तभी भी ये इंसान ऐसे बोल रहा है। एंड येट द मैन नो अ ग्रेट डील अबाउट हिम, हाउ, लेकिन तभी भी एक इंसान उनके बारे में बहुत कुछ जानता है, कैसे। ही इवन सीम्स टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, और ऐसा नहीं है कि वो खाली इतना चीज़ जानता है बल्कि बहुत भी गहराई से मेरे बारे में जानता है। बोल रहे हैं द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ्स, ब्रदर इंसैनिटी, तो मतलब बहुत सारी किताब जो मैं पढ़ता हूँ, मेरा वाइफ का
डेथ के बारे में, मेरा भाई कैसे पागल था उसके बारे में. द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हीज हैविंग गॉन टू रांची. तो ओनली उस मिस्टेक ये कर रहा है कि वो रांची के बारे में जब जाने का बात कर रहा है. नॉट अ मिस्टेक्स और डेलिबरेट लाई. तो बोल रहे हैं कि मिस्टेक नहीं बल्कि एक डेलिबरेट लाई. डेलिबरेट मतलब जानबूझ के जो किया जा रहा है, जानबूझ के वो झूठ बोल रहे हैं. In 58, यानी कि in 1958, during the pujas, he was in Kanpur at his friend Haridas Bagchi's place. तो पूजा के टाइम पे वो कानपुर में अपने फ्रेंड हरिदास बागची के घर पे थे. All Bipin Babu had to do was to write to. No, there was no way of writing to Haridas. तो बिपिन बाबू को ये काम करना था. वो लिख रहे थे कि हरिदास को लिखने के लिए कोई रास्ता नहीं था उनके पास, मतलब कोई मतलब लिख नहीं पा रहे थे. बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address. तब जो लिख रहे थे तो उनको याद आता है कि हरिदास बाबू कुछ मतलब वो अपने वाइफ के साथ जापान को चले गए हैं और उनको उनका एड्रेस पता नहीं है. ठीक है. बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ. लेकिन प्रूफ का ज़रूरत कहाँ पे था. ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट. तो पहले वो खुद ही कन्विंस है कि वो कभी रांची नहीं गए हैं और यही सब कुछ सही है, वो मान रहे हैं. ठीक है. एक सेकंड. So the river bridge was bracing and yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. The river bridge was bracing. तो वहाँ पे जो रिवर से जो थोड़ा बहुत हवा पानी बह रहा था वहाँ पे मतलब वहाँ पे वो थोड़ा ब्रेसिंग मतलब स्टिमुलेटिंग मतलब एक टाइप का एक्साइटमेंट क्रिएट कर पाता था. ठीक है. एंड ये स्लाइट डिस्कम्फर्ट. तभी भी उनके दिमाग में थोड़ा ना कहीं मतलब स्लाइट डिस्कम्फर्ट मतलब छोटा था. डिस्कम्फर्ट मतलब आराम नहीं था. कंफर्ट डिस्कम्फर्ट मतलब जो कंफर्ट नहीं है यानी कि जो आराम नहीं है, डिस्कम्फर्ट. ठीक है. तो थोड़ा सा दिमाग में लिंगर कर रहा था. लिंगर मतलब चिपकना, आ जाना. ठीक है. दिमाग में आ रहा था डाउट. अराउंड हेस्टिंग्स Bipin Babu decided to roll off his trousers and take a look at his right knee. तो वो अपना ट्राउजर्स को उठाते हैं और अपने राइट नी को देखते हैं. There was the mark of an old inch long cord. वहाँ पे एक लंबा सा कॉर्ड था. ठीक है. लंबा सा घाव कट गया था. It was impossible to tell when the injury had occurred. तो उनको ये भी पता नहीं था कि इंजरी किस टाइम पे हुआ था. ठीक है. Had he never had a fall as a boy and caught his knee. तो ऐसा नहीं हुआ होता कि had he never had a fall as a boy कि वो कभी एक बालक के जैसे मतलब गिरे नहीं होते. and caught his knee और अपना जो नी है वो नहीं मतलब कट हो गया होता उस पर. He tried to recall such an incident but couldn't. तो ऐसे कोई इवेंट हुआ होगा बोल के वो सोचने का कोशिश करते हैं लेकिन वो याद नहीं कर पाते. Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. तो बिपिन बाबू सडनली दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचते हैं. The man had said Dinesh was in Ranchi at the same time. तो दिनेश भी उस टाइम पे रांची पे सेम टाइम पे था. The best thing surely would be to ask him. तो सबसे बेस्ट थिंग क्या होगा कि उसको पूछने का. ठीक है. would be to ask him. He lived quite near in बेनी नंदन स्ट्रीट. तो उसने कहाँ पे रहता था वो, मतलब बेनी नंदन स्ट्रीट के पास में रहता था. ठीक है. What about going right now? अभी जाने का मतलब क्या है. But then if he had really never been to Ranchi, वो कभी रांची पे नहीं गया है. ठीक है. What would Dinesh think if Bipin Babu asked for confirmation? तो दिनेश बाबू क्या सोचेंगे अगर बिपिन ये पूछते हैं, कंफर्मेशन के लिए पूछते हैं. तो he would probably conclude that Bipin Babu was going nuts.
नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। तो वो गोइंग नॉट्स एक क्या एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है पागल हो जाना, ठीक है। तो बिपिन बाबू, ये जो दिनेश मुखर्जी थे वो क्या सोचेंगे कि बिपिन बाबू पागल हो चुके हैं, इसलिए उनको पूछना सही नहीं होगा, इस टाइप का वो सोचते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। यस सर। ओके। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकाजम कुड बी। सरकाजम मतलब किसी को मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, उसको सरकाजम बोलते हैं, ठीक है। और उनको पता था कि मतलब कितना बुरी तरह से मतलब सरकाजम हो सकता है, ठीक है, कितना बुरी तरह से दिनेश उनको उल्टा इंसल्ट कर सकते हैं। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम। तो थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स मतलब मुंह में डाल लेते हैं, वो उनका रूम एयर कंडीशन का होता है। बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, फिर उनको आराम से वो रहते हैं। सच ए न्यूशंस, तो मतलब ऐसे मतलब न्यूशंस मतलब अजीबो गरीब टाइप का सिचुएशन होना, ठीक है। तो ऐसे अजीबो गरीब सिचुएशन हो रहा है बोल के वो सोचते हैं। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि उनके पास दूसरा कुछ काम नहीं है। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर्स पीपल्स हेयर। तो अदर्स पीपल हेयर मतलब दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर करना, दूसरे के लाइफ पे घुसना और उनको परेशान करना। तो बोल रहे हैं कि इनके पास कुछ काम नहीं है, इसलिए इसी वजह से ये लोग दूसरों के लाइफ पे घुस के इधर उधर बातें कर रहे हैं। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स। तो जब डिनर कंप्लीट हो जाता है तो बेड में बैठ के एक थ्रिलर बुक पढ़ते हैं, ठीक है, एक सस्पेंस वाला बुक पढ़ते हैं। बिपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। तो बिपिन बाबू भूल जाते हैं उस आदमी के बारे में न्यू मार्केट में जब मिले थे। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस दैट विथ एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। तो बिपिन बाबू याद करते हैं कि मतलब हर पासिंग घंटों में, पासिंग डेज में वो चीज़ जो आदमी बोला था वो बार बार उनके दिमाग में आ रहा है। If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? तो अगर वो आदमी बिपिन बाबू के बारे में बहुत कुछ जानता है तो वो कैसे एक मिस्टेक कर सकता है रांची ट्रिप के बारे में। सो जस्ट बिफोर द लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग ऑफ दिनेश मुखर्जी। तो लंच से पहले बिपिन बाबू दिनेश मुखर्जी के बारे में मतलब दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करने का सोचते हैं। इट इज़ बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन। यही सही होगा कि मतलब वो क्वेश्चन को हम फ़ोन पे ही बात करके सेटल कर देते हैं, समझ जाते हैं। एटलीस्ट द एम्बरेसमेंट ऑफ ऑन हिज फेस वुडंट शो, ताकि ये जो बार बार दिमाग में आ रहा है ये मेरे पास नहीं आएगा। 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर। तो बिपिन बाबू नंबर को फ़ोन करते हैं। हेलो, इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ बिपिन हियर। तो वो बोलते हैं हेलो दिनेश बात कर रहे हो क्या? मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज, क्या बात है? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 1958। क्या आप मुझे याद कर सकते हो एक इंसिडेंट जो कि आप 1958 में हुआ था? सो 1958 वो इंसिडेंट, तो 1958 में कौन सा इंसिडेंट? Were you in Calcutta right through that year? That's the first thing I have got to know. क्या आप कलकत्ता में उस टाइम पे थे पूरा साल भर? मैं वो पहला चीज़ जानना चाहता हूँ। Wait, just a minute. 1958? Just let me check in my diary. तो दिनेश मुखर्जी बोलते हैं कि अच्छा 1958 में, मैं रुको मैं देखता हूँ 1958 में मैं डायरी में क्या एंट्री किया था। For a minute there was silence. Bipin Babu could feel that his heartbeat had gone off. He was sweating a little. तो वो देखते हैं कि बिपिन बाबू, तो एक मिनट के लिए वहाँ पे साइलेंस होता है। बिपिन बाबू क्या करते हैं, उनका हार्ट बीट बढ़ने लगता है, ठीक है, और थोड़ा स्वेटिंग भी कर रहे थे। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। तो बोलते हैं कि हाँ मैं पा गया, मैं 2 बार गया था। वेयर? वंस इन फेब्रुअरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग। तो एक बार मैं कृष्णा नगर को एक
भतीजे का मतलब वेडिंग था, वहाँ पे गया था. देन यू नो अबाउट दिस वन. और ये इसके बारे में भी आप पता होगा. द ट्रिप टू रांची, यू वर देयर टू, आप भी वहाँ पे थे. दैट इज़ ऑल. एंड व्हाट इज़ ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट. तो वहाँ पे ये पूछते हैं कि हाँ रांची पे मैं भी गया था. तो ये किस चीज़ के बारे में आप मतलब इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, किस चीज़, क्यों ये सब चीज़ें आप पूछ रहे हो. नो आई जस्ट वांटेड टू, एनीवे थैंक्स. नहीं, मैं जस्ट जानना चाहता था, बहुत धन्यवाद. बिपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड. तो he felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. तो ये सरप्राइज हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि अरे चलो क्या हो गया ये, कि मेरे दिमाग में मतलब थोड़ा मेमोरी अच्छे से नहीं आ रहा है. तो ये वो सोचने लगते हैं और वो सैंडविच मतलब टिफ़िन बॉक्स में खाने लगते हैं. ठीक, ये नहीं खाते और ऐसे ही मतलब वो रह जाते हैं. तो अपना जो एपेटाइट है वो मतलब जो खाने का भूख है वो लॉस कर चुके होते हैं. ठीक है. सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस मच. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, sir. सो Yes, sir. इसको मैं क्या किया हूँ, इसको मैं रिकॉर्ड भी कर दिया हूँ. ठीक है. और हर रोज़ इसको रिवाइज भी करो. ठीक है. क्योंकि ये हो सकता है कि कभी इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से तकलीफ़ होती है ना, और कभी दूसरा किसी चीज़ की वजह से तकलीफ़ होती है. तो बेसिकली मैं इसको भी रिकॉर्ड कर दिया हूँ और इसको रिवाइज कर देना. और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, किसी एक ग्रुप का एक ग्रुप 8A या 8B का मतलब एक ग्रुप बना था जिस पे इंग्लिश एक्टिविटी ग्रुप बनाए थे. ठीक इसी तरह इंग्लिश B या इंग्लिश 8A या 8B जो नहीं बनाए थे उसको बना लो. ठीक है. समझ रहे हो. जिसका ग्रुप नहीं हाँ, बना है, जिसका ग्रुप नहीं बना है उसको उसका उनका ग्रुप बना लो. क्योंकि ये जो ऑफिशियल ग्रुप है उस पर बार बार मतलब बहुत सारे डेटा हो जाता है ना, कभी कभार मुझे उसको डिलीट भी करना पड़ता है. लेकिन ये एक्टिविटी ग्रुप में रहने से सब कुछ मतलब डेटा टाइप का रह जाता है. तो इसी वजह से 8A का 8B का इंग्लिश एक्टिविटी ग्रुप 2 ग्रुप बनाओ. ठीक है. तो इसको मैं रिकॉर्ड करके फिर से तुम्हारा ग्रुप में छोड़ दे रहा हूँ और अपने अपने क्लास सेक्शन का ग्रुप बनाओ. सो एनी डाउट. No, sir. No, sir. No, sir. ओके. No, sir. सी यू लेटर देन. और इसका कॉम्प्रिहेंशन चेक वगैरह सब कुछ कर लेना और मुझे दिखाओ सब कुछ. Yes, sir. Yes, sir.